सो आज यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। टोटल 8 स्टेप है। 4 स्टेप कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, 4 स्टेप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हियर बिफोर गोइंग इनटू द मेन पॉइंट्स आई हैव रिटन लिटिल बिट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। ओके, लाइक it helps in the diagnosis of pathogens. Suppose you have some kind of disease going on and you are on your skin. Suppose on your skin you have some kind of disease going on and you are trying a lot of medicine, but these medicines are not working properly. At that time the doctor would recommend you to go for molecular diagnosis. That means they will take a cell from that infected region, they will remove the cell wall, they will remove the other components, RNA, proteins, everything will be removed. Just the DNA. That DNA can be your cell's DNA. That DNA can also be the DNA of the pathogen which is present inside your cell or which is infecting your cell. Okay, in that way whenever they will do PCR they will get a lot of DNA fragment, and from there they can know that this DNA fragment belongs to which particular pathogen. In that way it helps in the diagnosis of pathogen, diagnosis of specific mutation, DNA fingerprinting, which is very much essential in crime scenes or for decoding any kind of crime scene suspects, is not it? Like they will take some kind of sample from the crime scene and then they will do DNA fingerprinting by using PCR. They will make a lot of DNA from that sample and then they will try to, CID में देखा होगा, they will try to then match that DNA fingerprinting with their database that they have, like that. Okay, there are other applications of PCR as well, like plant pathology. You can also write PCR also helps in knowing about plant pathology. PCR helps in paleontology. Paleontology is related with fossils. Whenever scientists they get a old fossil, wait a second, I think you are getting some reflection. So whenever scientists they get some old fossil, what do they do? In order to know that this fossil belongs to which organism, they will take any left part from that particular fossil and they are going to do PCR and they will know that this DNA belongs to which particular organism, like that. Okay, so these are applications you must, this is something extra beyond PCR. Entrances में कभी आ सकता है, बोर्ड के लिए नहीं है जनरली। चलो फिर भी मूव ऑन करते हैं अब रिमेनिंग 4 पॉइंट्स पे। जो 5th पॉइंट है एकदम सिंपल है, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट। हम लोगों ने पीसीआर से क्या किया, डिजायर्ड डीएनए का बहुत सारा कॉपीज बनाया। तो जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है, इफ डिजायर्ड, ऑब्वियसली डिजायर होगा इसलिए पीसीआर किया है, कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए बना लिया है, अब उनमें से कोई एक को हम लोग वेक्टर के साथ जोड़ने वाले हैं। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ, जोड़ने में कौन मदद करता है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम मदद करेगा स्टेप नंबर 5 करने में। तो अभी हम लोगों का स्टेप 5 के एंड में व्हाट डू वी हैव अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी, बिकॉज हम लोगों ने वेक्टर में डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर दिया। नाउ वी हैव आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी। नाउ द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड अ होस्ट। ओके, तो सुइटेबल होस्ट वही है जिसका लाइफ साइकिल छोटा है, जो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैंने तुम लोग को 2 चीज बोला है, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए आजकल जनरली क्लोनिंग के लिए कम करते हैं, क्योंकि क्लोनिंग के लिए हम लोगों ने पीसीआर डेवलप किया है, ठीक है ना, रिसेंट टाइम पे। पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो जीन क्लोनिंग के लिए भी होता था एंड उस डिजायर्ड डीएनए से कुछ प्रोटीन्स एक्वायर करने के लिए भी होता था, ठीक है। लेकिन आजकल वो चेंज हो गया क्योंकि कॉपीज हम लोग पीसीआर से बना सकते हैं। तो मेनली जो फोकस है ऑफ डूइंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू गेट सम प्रोटीन्स फ्रॉम द डिजायर्ड डीएनए, जो हम लोग अभी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे। उस डिजायर्ड डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस हो और उस डिजायर्ड डीएनए से हम लोग को नेसेसरी प्रोटीन्स मिले। ये है कंसेप्ट, ये है थॉट बिहाइंड डूइंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन दिस डेज, ठीक है। तो अभी स्टेप 6 पे चलेंगे, इसका नोट बना लो। सो यहाँ पे अभी हम लोग स्टेप नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेप 5 के बाद हमारा रेडी था, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो बिकॉज डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता है, हेंस वी विल हैव टू टेक सम मेजर्स, we will have to apply some
methodologies, some techniques in order to make this recombinant DNA to penetrate through the cell membrane of the host cell. ठीक है, so वही लिखा है, since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membranes. Hence the host cells must first be made competent. Competent माने able enough to take up the DNA. ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 5 प्रोसेसेस डिस्कस करना है, उनमें से 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज 1, दिस इज 2. 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर अंडरगोइंग द 3, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में भी 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप हम लोग करते हैं. ठीक है ना, 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप करेंगे. लेकिन ये 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप करने से पहले व्हाट डू, वी मेक दी होस्ट. यहाँ पे हम लोग होस्ट बैक्टीरिया को कंसीडर अगर करें, हम लोग बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, CaCl2 सोल्यूशन में थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं. उससे क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो चिपक जाता है ऑन दी सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है ना, जैसे कि CaCl2 सोल्यूशन में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहाँ पे चिपक जाएगा. ये देखो rDNA ऐसे चिपक जाएगा. ठीक है, उसके बाद 3 टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप करेंगे, फिर ये rDNA बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा. So before undergoing the 3 temperature dependent steps, bacteria is first treated with CaCl2 solution, calcium chloride solution, which causes the DNA to precipitate, चिपकना onto the outside of the cells. ठीक है, फिर 3 temperature dependent step. पहले recombinant DNA बैक्टीरिया आइस, कोल्ड शॉक, तुरंत उसको रिमूव करके हम लोग देंगे हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस. फिर बैक ऑन आइस, अगेन कोल्ड शॉक. सो कोल्ड शॉक, हीट शॉक, कोल्ड शॉक. ये देने के वजह से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पोर्स का क्रिएशन होगा, एंड थ्रू दिस पोर्स दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड थ्रू दिस पोर्स ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो चिपका हुआ है सेल मेम्ब्रेन में वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. दूसरा जो स्टेप है उसको हम लोग माइक्रो इंजेक्शन बुलाते हैं. यहाँ पे इंजेक्शन के मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस में हम लोग इंजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये एक और टेक्निक है, और 3 टेक्निक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे. तो यहाँ पे है रिमेनिंग 3 स्टेप्स. ठीक है, पहला 3rd जो स्टेप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेक माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन. ठीक है, और उन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर, ये माइक्रो पार्टिकल है, इस माइक्रो पार्टिकल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देंगे. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी कोटेड ओवर the microparticles of gold and tungsten. This will be considered as a bullet. ठीक है, एक गन है जिसको हम लोग बुलाते हैं जिन गन. उस जिन गन के अंदर इस बुलेट को लोड करेंगे और जिन गन से फायर करेंगे. वो जिन गन इतना हाई वेलोसिटी में फायर करता है कि वो क्या करेगा, बुलेट को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट करा के अंदर भेज देगा. जो पोर क्रिएट होगा सेल में वो इतना छोटा है, नैरो पोर होगा कि सेल उसको रिपेयर कर लेगा. ठीक है, लेकिन हमारा जो जिन गन है उससे जो ये बुलेट है दैट इज गोल्ड और माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो तो सेल के अंदर चला गया. सेल्स आर बोmbarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as biolistic or gene gun suitable for plant cells. ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन suitable for animal cell, biolistic gun suitable for plant cell. ओके, डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है. कैसे हम लोग वायरसेस के मदद से हम लोग सुइटेबल जेनेटिक मटेरियल या डिजायर्ड डीएनए को कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी सेल के अंदर. एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. इलेक्ट्रोपोरेशन यहाँ पे सेम है, वहाँ पे बस हम लोगों ने हीट आइस शॉक दिया था स्टेप नंबर 1 में. स्टेप नंबर 5 में हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हाई फील्ड स्ट्रेंथ आर गिवन. ठीक है, ये देंगे जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होगा, उन पोर्स के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 खत्म होता है. अब 7 और 8 क्या है वो देख लेते हैं. अब मतलब एट द एंड ऑफ दिस processes what we have with us, we have that the recombinant DNA is inside a host, and now what that host will do, why the recombinant DNA has been put inside the host cell, why, what is the reason, what is the benefit we are going to get out of it, that is our discussion at point number 7 and 8. तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन द न्यूट्रिएंट मीडियम. होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसका प्रोडक्ट से हम लोग को मतलब है. ठीक है, क्योंकि जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चला जाएगा उससे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए
प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए उसमें लगा हुआ है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो वो जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो प्रोटीन से मेरे को मतलब है, वो प्रोटीन मेरे को चाहिए, ठीक है। सो कल्चरिंग दी होस्ट सेल्स इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, होस्ट सेल जो है उसको न्यूट्रिएंट देंगे तो वो ज्यादा प्रोलिफरेशन करेगा, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एट ए लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। वो डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट से मेरे को मतलब है वो चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इनटू अ डिजायरेबल होस्ट इज फॉलोड बाय ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उस होस्ट को मुझे सुइटेबल कंडीशन देना पड़ेगा, एबंडेंस ऑफ खाना, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब वो होस्ट क्या करेगा, बहुत रैपिडली ग्रो करेगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपना नंबर्स बढ़ाएगा। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जब वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, बीइंग इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द जीन्स एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स, ठीक है, एज प्रोटीन्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है ना। अब हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो डिजायर्ड डीएनए कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, बना के अपने मीडियम में छोड़ेगा, जिस मीडियम से वो खाना खा रहा है उसी मीडियम में वो प्रोटीन्स को छोड़ेगा। वो प्रोटीन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। काहे बुलाते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इफ द प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल, पहला बनने के बाद पहला हम लोग छोटा सा डिश में हम लोग उसको ग्रो करेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट को इवेलुएट करेंगे। वी विल सी इफ द प्रोडक्ट इज डिजायरेबल और नॉट, or if there is any modification required in this particular product. We will see that, we will analyze the product, and if we find the product is okay, then we will go for a bigger production, okay. So if the product is valuable, it is first developed in small scale, and after suitable changes, after proper analysis, it is developed in a large scale bioreactors, जिसका capacity है up to 100 से 1000 liters is the capacity of the बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर देखने में कैसा होता है वो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ये मिटाने के बाद। सो व्हाट इज बायोरिएक्टर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे तुम लोग को डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। फर्मेंटर एंड बायोरिएक्टर्स दे आर सेम, ठीक है, सिनोनिम्स है, ठीक है। फर्मेंटर इज द टैंक और वेसल इन विच द प्रोसेस विल बी कैरिड आउट, ठीक है। ये जो प्रोसेसेस हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स मिलेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये प्रोसेसेस एक टैंक के अंदर होता है, जिस टैंक को हम लोग फर्मेंटर या बायोरिएक्टर बुलाते हैं। सो दे आर ऑल्सो चैम्बर्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड इन अ लिक्विड और सॉलिड मीडियम, ठीक है। ये टैंक के अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट डाल देंगे, उसमें हमारा जो होस्ट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो आराम से ग्रो करेगा, आराम से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोगों ने एज ए होस्ट यूज किया है उसको ऑप्टिमल कंडीशन, नेसेसरी सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा, सो दैट बाय प्रोवाइडिंग, सो दैट मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग को मिले, वो बैक्टीरिया पूरा धमाधम ग्रो करे और धमाधम हमारा प्रोटीन्स प्रोडक्शन करे। बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे कि क्या क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, बैक्टीरिया को क्या खाना पसंद है, नेसेसरी सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वो जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी वो फूड ब्रेक डाउन कर पाएगा। ये सब कंडीशंस हम लोग बायोरिएक्टर में प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया आराम से ग्रो करता है, एज वेल एज हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे एक बायोरिएक्टर देखने में कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, ओपन एंड क्लोज, वो पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 8। सो हियर यू कैन सी बायोरिएक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है एक बायोरिएक्टर देखने में, जिसमें एक स्ट्रेट रॉड घुसा हुआ है, जिसमें फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, मोटर दिखाता है स्पीड घूमने का, ठीक है। ये कंटिन्यूअस घूमते रहता है, माने कंटिन्यूअस स्टीयरिंग इज प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ओके। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, मीडियम का पीएच कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, पीएच बैलेंस करना पड़ेगा। ऑप्टिमम कंडीशन में हम लोगों ने पीएच कंट्रोल भी लिखा था। स्टेराइल एयर यहाँ से पंप करेंगे, सो दैट कंटिन्यूअस ऑक्सीजन ऐड होते रहे, ऑक्सीजन ऐड होते रहेगा तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग प्रोवाइड करेंगे according to the species, whatever microorganism we have used, what is the food that it can easily eat, it can easily break, that is the nutrient medium we are talking here about. Steam for sterilization, in this medium we cannot allow other microbes to grow, so we will have to add some kind of chemicals with the help of which we can maintain a sterile condition, okay.
cooling water is circulated around the fermenter for heat control. We cannot allow the temperature to grow too much, as because the continuous stirring is going on, there can be a rise in temperature which we cannot allow. Hence cooling water is circulated around the fermenter to take away the heat. Anti-foaming agents are also added, because in the presence of foam the oxygen will not be able to dissolve properly in the medium. Hence anti-foaming agents like Sparger is used. Okay, and after you do a successful fermentation, and here the fermentation does not means anaerobic culture. Anaerobic and aerobic both cultures are these days represented by the word fermentation, especially when we use it in biotech. Okay, so after a successful fermentation, the product is either the cells themselves or some useful cell product. Okay, so we will get our necessary product, जिसके लिए इतना सब तामझाम किया, इतना कल्टीवेशन वगैरह हम लोगों ने किया, बायोरिएक्टर का यूज किया, we will get our necessary cell product. Okay, now there are two types of fermentation, वो पढ़ेंगे, then we will move to step 8. इसको ड्रॉ कर लेना. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है, ब्लैक इंक खत्म हो गया इसलिए ब्लू में लिखा है. वाह क्या शायरी होगी. जो भी हो, तो टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन में पहला है बैच फर्मेंटेशन, क्लोज सिस्टम, या कंटिन्यूअस कल्चर, ओपन सिस्टम. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले मैं बता देता हूँ. जो बायोरिएक्टर हम लोग यूज करते हैं, उस बायोरिएक्टर में एक बार मैंने न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, उसके बाद उसमें जितना न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया उतना न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन से जितना प्रोडक्ट मुझे बना के दे सकता है, मैं उतने में ही खुश हूँ. बायोरिएक्टर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डाल दिया है और मैं न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करूंगा. उसमें मैंने माइक्रोब्स को भी डाल दिया है. वो माइक्रोब उतना ही न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके मुझे कितना प्रोडक्ट बना के दे सकता है, मैं उसी में खुश हूँ. दैट इज बैच फर्मेंटेशन. एंड इफ you use a high tech bioreactor where you can take out the used nutrient medium and you can put a new nutrient medium. that means हम लोग बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट का कमी होने नहीं देंगे. वो न्यूट्रिएंट थोड़ा यूटिलाइज करेगा, हम लोग और डाल देंगे, थोड़ा और यूटिलाइज करेगा और डाल देंगे. ये है ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो कंटिन्यूअसली हम लोग ऐड करते रहते हैं. इसमें हम लोग को प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को हम लोग कभी भी खाने का कमी होने नहीं देते हैं. इसलिए इसको कंटिन्यूअस या ओपन बोला जाता है. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इसमें एक बार न्यूट्रिएंट्स दे दिया, फिर बायो रिएक्टर लॉक्ड, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स का एडिशन नहीं होगा. यही है. देखो बैच फर्मेंटेशन में द प्रोसेस वंस स्टार्ट्स डज नॉट स्टॉप्स until sufficient product is formed. That is, the conditions are set up and not changed from outside. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड. जो बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे. इसमें अगर देखें, here the used medium is drained out from one side while fresh medium is added to maintain the cells in their physiologically most active exponential phase. That means माइक्रोब्स का सबसे ज्यादा एक्टिविटी तभी होगा जब उसको खाना मिलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, यूज मीडियम निकाल लेते हैं, न्यू मीडियम दे देते हैं, सो दैट खाने का कमी ना हो. द कंटेंट्स ऑफ द फर्मेंटर आर देन रिमूव्ड. एक बार अगर ये हो जाएगा, उसके बाद कंटेंट्स जो भी है अंदर उसको रिमूव करेंगे. जब हम लोग को लगेगा कि सफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, द प्रोडक्ट इज आइसोलेटेड, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्कार्डेड, फेंक देंगे. फर्मेंटर इज क्लीन एंड सेट अप फॉर फ्रेश बैच. फिर से एक नया बैच रेडी करेंगे जिसमें न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यू न्यूट्रिएंट्स देके फिर लॉक कर देंगे. ये कम दिनों में ही ये हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फिक्स्ड है. न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट तो पकड़ लो वन वीक, फ्यू डेज, उसमें ही ये अपना जितना भी मैक्सिमम प्रोडक्ट देना है दे देगा. लेकिन इसमें ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशन है, ओवर मेनी वीक्स तक ये चलता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें फ्लो होते रहता है, विच लीड्स टू द हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. तो जितना लंबा टाइम तक चलाओगे, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट दोगे, बैक्टीरिया उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना के देगा. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 होता है फिनिश. अब हम लोग चलेंगे इनटू स्टेप नंबर 8. विद दिस डिस्कशन ये चैप्टर खत्म होता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. फर्मेंटर के अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया, अब उसको निकालना है और उसको प्रॉपर यूज के लिए रेडी करना है. ठीक है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं. डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो आफ्टर फर्मेंटेशन किया जाता है
जहाँ पे हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट का रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। वी रिकवर दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द कल्चर मीडियम, उस कल्चर मीडियम जो फर्मेंटर के अंदर है, बायोरिएक्टर के अंदर है, उससे हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकालेंगे एंड उसको प्यूरिफाई करेंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। रेडी टू यूज से पहले बहुत सारा स्टेप्स हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि एट फर्स्ट पहले क्या करेंगे, द कंटेंट्स आर सेपरेटेड इनटू सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट डन बाय फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन तो सबको समझ में आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक बड़ा सा क्या बोलूं, तुम लोगों ने अगर पुराने ज़माने का ओवन देखा है तो पुराने ज़माने का ओवन कैसा होता था, जैसा गोल होता था, एलियन मिनी एलियन शिप के जैसा लगता है, ऐसे खोला जाता है ना। तो उसके अंदर हम लोग मोटर को बहुत तेज में घुमाते हैं। वो मोटर क्या करता है, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करता है, सॉलिड को प्रेसिपिटेट कर देता है, लिक्विड को एक दूसरा चेम्बर में भेज देता है, ठीक है, वो मोटर, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब करके हम लोग बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। सॉलिड पार्ट में सब सेल्स, उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम का अगर कोई वेस्ट है, कुछ भी, मतलब अगर जो सॉलिड पोर्शन में ये सब चला जाएगा। वेयर इज द लिक्विड पार्ट है सेल प्रोडक्ट, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट इस लिक्विड पार्ट में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड पार्ट को और अदर टेक्निक्स के थ्रू हम लोग पास करेंगे, जैसे कि क्या, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। हम लोगों को इस लिक्विड पार्ट का प्रोटीन्स चाहिए, तो प्रोटीन इज बेसिकली अ सॉल्वेंट टू दिस सोल्यूशन। तो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ड्राइंग सोल्यूशन, अगर वाटर को हम लोग इवापोरेट कर दें, क्रोमेटोग्राफी, उस सोल्यूशन में हम लोग कुछ कलर डाल के प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रोटीन के साथ वो कलर रिएक्ट करेगा, फिर वो कलर प्रोडक्ट्स को हम लोग निकाल लेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा, ये सब करेंगे, व्हिच गिव्स आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट मींस वो प्रोटीन जिसके लिए इतना तामझाम हम लोगों ने किया है, व्हिच देन अंडरगो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बिफोर मार्केटिंग। तो फिर मार्केटिंग होने से पहले क्वालिटी प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। मान लेते हैं जो एलियन डीएनए है वो बोले इंसुलिन प्रोड्यूसिंग है, ठीक है ना, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो, तो जैसे कि किसी लोगों का ऐसा होता है बाय बर्थ उन लोगों के बॉडी में जुवेनाइल डायबिटीज हो जाता है, तो बाय बर्थ दे हैव लेस इंसुलिन इन देयर बॉडी, सो दे नीड इंसुलिन शॉट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है, और पूरा लाइफ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो दे विल डाई। तो अगर हम लोग को इंसुलिन को बाहर प्रोड्यूस करना है, क्या करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ह्यूमन के बॉडी से निकालेंगे, है ना। हमारा इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास, बीटा सेल को निकालेंगे, बीटा सेल से हम लोग क्या करेंगे, एक वो जीन निकालेंगे जो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। फिर उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, जोड़ के उस जीन को हम लोग एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, फिर उस बैक्टीरिया को हम लोग फर्मेंटेशन में डाल देंगे, फर्मेंटर के अंदर डाल देंगे, बायोरिएक्टर के अंदर डाल देंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ठीक से खाना खाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो जब वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो कौन फॉर्म होगा, इंसुलिन फॉर्म होगा कि नहीं। तो वो इंसुलिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मान लो, और फिर वो हम लोग प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग कंट्रोल करके फिर हम लोग इसको मार्केटिंग में ला सकते हैं। लोग उस इंसुलिन को जुवेनाइल डायबिटीज जिन बच्चों को होता है उनमें यूज कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट है इस चैप्टर में जो भी टेक्निक्स पढ़ा उसका एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स, तो उसका वीडियोस अपन कुछ दिन बाद बनाएगा। अभी नेक्स्ट वीक से हमको फिर से फर्स्ट ईयर का वीडियोस बनाना है, तो यहाँ तक कर लो, ये चैप्टर खत्म कर लो। मिलते हैं ब्रेक के बाद।